दिया था वो ये था कि कंसिस्टेंसी इज़ द की। बेसिकली सो आई थिंक कि हाईज आते थे, लोज आते थे, मॉक में स्कोर्स बढ़ते थे, कम होते थे, बट वन थिंग विच शुड नॉट डिटर। स्टार्ट करता हूँ। मैंने फर्स्ट चीज़ देखी कि ये एनालिटिकल रीजनिंग आ रखा है। मैंने सोचा कि एक क्वेश्चन आएगा, मैंने पेज पे करा, बट सारे ही क्वेश्चन ऑफ एनालिटिकल। बट सर आई थिंक कि आपने बोला था कि मतलब इनको सरप्राइज तो देना है, तो सरप्राइज वॉज एक्सपेक्टेड। एंड आपने बोला था कि लाइक एक डीप ब्रेथ लो, स्टार्ट करो, तो वो एक स्टार्ट करा एंड आई थिंक कि वो होता रहा एंड मुझे रियलाइज़ हो गया कि यार क्वेश्चंस तो हो रहे, इजी क्वेश्चंस है ये हमें, एंड से बस उनको से लाइक कंसिस्टेंटली करता गया। सो बेसिकली हाईलाइटिंग वाज द लाइक हाईलाइटर्स वर द हाईलाइट्स ऑफ अ जर्नी। Okay, hi everyone. We have Yatharth Bansal today with us. Yatharth Bansal is All India rank 180 in CLAT 2026. So the purpose of the interview is just to take a couple of takeaways from Yatharth, that how exactly he prepared, what challenges he faced, so that most of the people who are writing CLAT in 2027 may benefit from his strategies and the way he worked for these 2 years. So, welcome Yatharth. So, Yatharth, possibly you will be able to correlate that, and this is for everybody else. I've never called him Yatharth Bansal. He was only Bansal for all of us. So, it becomes very difficult to call him Yatharth Bansal today because, I'm not a third person who's interviewing him. I've only taught them, so we are very known to each other. So, but here for the audience purposes, I'll be calling you Yatharth. Let's मेरे लिए भी थोड़ा awkward हो तुम्हारे लिए भी awkward हो रहा है थोड़ा। So let's call you Bansal only, right? I think both of us are more comfortable with this. So Bansal, I know you कि तुम क्या हो क्या नहीं हो, but people who are listening you for the first time, just a small intro would do. Hello everyone, my name is Yatharth Bansal and I have scored a rank of 180 in CLAT 2026. I was in NPLC for the last 2 years since class 11th, and so has like truly shaped my journey. Okay, Bansal, if you may also tell which school you go to. I am in class 12th and I have done my schooling from Gyan Bharati School, Saket. And so Saket is in Delhi for people who are listening to us from apart from Delhi. So Bansal, my of course next question would be that the day you joined, I remember you coming and we talking to each other. From inception, you have been a good student for sure, and I'm sure कि मेरे यहाँ तो 11th में आए थे, उससे पहले भी अच्छे रहे होंगे, इसलिए 11th में भी अच्छे थे. So my question is, सब कुछ अच्छा था, everything was good, you are a hard working student. लॉ चूज किए 11th के बाद कि मुझे लॉ करना है, ये कब और क्यों ख्याल आया मन में कि मुझे लॉ करना है? So you asked this question on the very first day as well. So on that day, I think I abstained from answering this question. But like today, I think I should answer this question. So basically, like all the people like with which I grown up, so all of them were like all of the people who surrounded me, all of those people chosen law as their career. So basically, I think that's why I was inclined towards law, and I think so. As my father is also in legal profession, I think that also shaped my choice. Okay, so of course, parents being in legal profession, generally ऐसा सिनेरियो हो जाता है कि उनके फ्रेंड्स, उनके कलीग्स, वही लोग हमारे घर पे रेगुलर विजिटर्स होते हैं, और आप बचपन से ही फिर आप वही फाइल्स और वो सब देख रहे हो, तो दैट गिव्स यू अ काइंड ऑफ फैसिनेशन. So possibly that was also a reason for you कि मुझे लॉ करना है. Great. So it was a choice. Yes, sir. It was your choice. It was not elimination. Yes, sir. So my father used to insist me that I should take science, but I told him that I think I am better meant for law. Okay. So you convinced him कि तुम्हारा ये choice है. It's not that कि तुम eliminate करके आए थे कि नहीं मुझसे engineering नहीं होगा, मुझसे medical नहीं होगा. It was not that. You wanted to be a lawyer, right? Perfect. So Bansal, of course, I want to understand कि रैंक 180 का जर्नी कैसा होता है.
क्या वो आरामदायक होता है या फिर बहुत डिफ़िकल्ट होता है, 180 ऑन सो में थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स। तो 180 का जर्नी था कैसा रहा ये 1.5-2 साल? एक ब्रीफ बताओ, फिर हम स्पेसिफिक क्वेश्चन तुमसे पूछेंगे। सो मैंने की टेक अवे जो अपने सीनियर से लिया था वो ये था कि कंसिस्टेंसी इज़ द की। बेसिकली सो आई थिंक कि हाईज आते थे, लोज आते थे, मॉक में स्कोर्स बढ़ते थे, कम होते थे, बट वन थिंग विच शुड नॉट डिटर अस, दैट इज़ कि कंसिस्टेंट रहना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो सर आई थिंक कि मैंने सिर्फ एक क्लास अभी तक मिस करी है, लाइक जो वीकेंड क्लास होती थी उसमें मैंने सिर्फ एक क्लास मिस करी थी पूरे 2 साल 11th में। यस सर, 11th में करी थी, एंड वो क्लास ली थी अवंतिका मैम ने। एंड उस दिन भी क्या पढ़ाया था वो भी मुझे पता है, लाइक सारे नोट्स मेरे पास है। तो बेसिक एंड वो शायद से मुझे बाकी जितनी भी क्लासेस उन सबसे जो क्लास मैंने मिस करी वो मुझे सबसे अच्छे से याद है आज। तो आई थिंक कि सर कंसिस्टेंसी इज़ द की, एंड मतलब मॉक के स्कोर्स आर मेंट कि वो चेंज होएंगे, तो वन शुड बी रेडी फॉर दैट सर। सो ये सेइंग कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस। कुछ करो नहीं करो जो करेंगे, बट कंसिस्टेंट रहो, कीप डूइंग द थिंग्स व्हाटएवर इज बीइंग डन विदाउट बीइंग टू क्रिटिकल अबाउट इट कि मुझे क्या फायदा करना है। ये यहाँ पे बहुत लोग का फायदा क्या होता है, इट्स अ लैंग्वेज बेस्ड एग्जाम। तो अब आप इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन कर रहे हैं तो वो आपको इमीडिएट सेंस ऑफ अचीवमेंट नहीं देगा, वो बैकड्रॉप में इंप्रूव करना है। सो दैट्स व्हाट इज कॉल्ड कंसिस्टेंसी, कि फॉरगेट एंड स्टॉप बीइंग क्रिटिकल अबाउट ये करने से मुझे क्या फायदा होगा। इफ यू थिंक दैट मच यू विल नेवर बी एबल टू प्रिपेयर, बिकॉज दिस एग्जामिनेशन इज डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल जेई एंड मेडिकल एंड नीट का जो एग्जाम होता है। Great. Now, Bansal, how many mocks did you write? So about 240, 245. 240 mocks. Okay, so Bansal, my next question would be, इतना सारा mocks किए इंग्लिश पहले किए, लॉजिकल, you would have experimented everything possible. My next question is कि of course इतना सारा mock देने के बाद एक परसेप्शन पेपर का आ जाता है कि पेपर कुछ ऐसा होने हो सकता है, you would be possibly prepared for everything possible. Now tell me कि जब एग्जामिनेशन के पेपर में बैठे तो वो 2 घंटे में हुआ क्या तुम्हारे साथ? आई थिंक सर मैं लॉजिकल से स्टार्ट करता हूँ। मैंने फर्स्ट चीज़ देखी कि ये एनालिटिकल रीजनिंग आ रखा है। मैंने सोचा एक क्वेश्चन आएगा, मैंने पेज टर्न करा, बट सारे ही क्वेश्चंस वो एनालिटिकल। बट सर आई थिंक कि आपने बोला था कि मतलब इनको सरप्राइज तो देना है, तो सरप्राइज वाज एक्सपेक्टेड, एंड आपने बोला था कि लाइक एक डीप ब्रेथ लो, स्टार्ट करो। तो वो एक स्टार्ट करा, एंड आई थिंक कि वो होता रहा, एंड मुझे रियलाइज हो गया कि यार क्वेश्चंस तो हो रहे, इजी क्वेश्चंस है, अगर सरप्राइज है भी आधे बच्चे उधर ही हार मान लेंगे। तो क्योंकि एप्टीट्यूड बेस्ड एग्जाम है, उनको वो चाहते हैं कि ये एलिमिनेट हो जाए बच्चे, जो लोग मतलब बेसिकली लॉ का एक एंट्रेंस एग्जाम है, उसमें वो लोग एप्टीट्यूड देख रहे हैं कि कैन यू हैंडल स्ट्रेस। अगर एक स्ट्रेसफुल कंडीशन दे दिया तुम्हें, तब भी क्या तुम उसको हैंडल कर पा रहे हो, एंड आई थिंक कि वो जस्टिफाई हो गया, उससे वो बैलेंस पेपर भी बन गया, एंड दैट इज द थिंग। सो वो 2 घंटा तुम्हारे लिए बहुत कंफर्टेबल था। नो शॉकर्स। मतलब मैं जब रिव्यूज सुन रहा था एग्जामिनेशन के बाद तो मुझे लगता था कि इस देश का हर लॉ एस्पिरेंट बिल्कुल डिवास्टेट हो चुका है कि वापी क्रिटिकल की जगह एनालिटिकल दे दिए। आई थिंक दैट वाज नॉट फॉर यू। यू वर मेंटली प्रिपेयर्ड कि ऐसा कुछ होगा, कि कुछ भी फॉर्म में हो सकता था, तो इस बार लॉजिकल के फॉर्म में आया। राइट, got it, Bansal. Now, Bansal, I know how exactly you have worked. तो बहुत मेहनत किए हो and everything. जैसे सबका सबसे बड़ा इशू होता है, तुम्हारा सबसे बड़ा इशू क्या था पहले ये बताओ पूरे? आई थिंक सर जीके था, लाइक एवरीबडी एल्स। मैं जीके पे ही आ रहा था, बट मैंने एक हॉल्ट लिया ये समझने के लिए कि पहले तुम्ही से पूछता हूँ तुम्हारा, इससे पहले कि मैं ही टर्म कर दूं कि तुम्हारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम जीके था। लेट इट कम फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ। तो जीके इशू था। इशू का क्या मतलब है कि जीके तो सबका इशू होना ही है, सिलेबस लेस है, एंड लेस है, क्या पूछेंगे क्या नहीं पूछेंगे। इस बार इतना सारा स्टैटिक डाल दिए एलिट में, विच नोबडी एक्सपेक्टेड, राइट। सो वो एलिमेंट ऑफ सरप्राइज रखने के लिए उनका जो भी पर्पस सॉल्व होता है उससे। लेकिन माई पॉइंट इज, भाई जीके किए कैसे? सर आई थिंक सर आपने सर सारे मॉड्यूल्स दिए हमें, एंड सर बस उनको सर लाइक कंसिस्टेंटली करता गया। सो बेसिकली हाईलाइटिंग वाज द लाइक हाईलाइटर्स वर द हाईलाइट्स ऑफ अ जर्नी। बेसिकली हर चीज़ सारे हाईलाइट कर दिए फैक्ट्स, क्योंकि वो लोग तुमसे स्टोरीज नहीं पूछेंगे। तो कुछ मॉड्यूल्स थे उसमें सिर्फ कहानियाँ थी, उन कहानियों को वो कहानियाँ नहीं पूछने वाले, वो लोग फैक्ट्स पूछेंगे। तो आई जस्ट यूज्ड टू हाईलाइट दोज फैक्ट्स, एंड उनको बार बार रीड करने से आई थिंक कि वो दिमाग में चले जाते थे, क्योंकि ऑप्शंस में से ही हमें फाइंड आउट करना था कि आंसर क्या होगा। एंड सर लाइक
आपने फिर एक ऐसा ही मॉड्यूल दे दिया जिसमें कोई मतलब ऐसा कहानी थी नहीं उसमें, सर सब कुछ याद सिर्फ करना facts. था। यस सर, तो वो एक थोड़ा तब से एक ऑब्स्टैकल था कि यार ये कैसे करना है जर्नी में, बट वो भी कर दे, वो लास्ट में था तो सब कुछ याद ही था, बाकी सारी चीज़ें हम करते गए एंड फिर वो भी हो ही गया सर। एंड बार बार चीजें होने से वो रजिस्टर करते यस सर, आई ऑलवेज फील कि होता है ना, एवरीथिंग हैज टू बी डन मल्टीपल टाइम। जैसे हमको लगता है इंडियन पॉलिटी हमने 8 बार 10 बार 15 Yes, बार sir. पता नहीं कितनी बार किया। सर एग्जाम से 2 वीक्स पहले हमने पॉलिटी करा था एंड वो आए थे Politics, क्वेश्चंस। वो हमेशा होता है, दैट ऑलवेज हेल्प। ये दे चेंज द पैटर्न ऑफ द पेपर। तुम ये नहीं बैठ के मैं सुनता रहता हूँ मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, मोस्ट ये होता है, मुझे ये समझ में आता रहता है कि क्या हो रहा है, एंड मतलब आई अंडरस्टैंड हाउ एग्जैक्टली इट गोज। ओके, अब ये बताओ बंसल, ठीक है जीके भी हैव अंडरस्टूड क्या किया, जब एनालिटिकल आया तो तुम कंफर्टेबल थे एनालिटिकल Yes, में जनरली, मैथ्स का क्या किया? सो मैथ्स में सर लाइक पूजा मैम ने हमें मतलब एडवांस टू एडवांस क्वेश्चंस भी करवा रखे थे, तो लाइक जब क्योंकि क्लैट के लाइक वैसे एग्जाम में सिर्फ अप टू क्लास 10th आएगा, तो वो फिर बहुत ही इजी हो गए थे क्वेश्चंस। सो जो इस बार आया भी वो भी बहुत इजी था, हमने क्योंकि प्रिपरेशंस इतनी हाई कर दी थी कि मतलब ऐसे क्वेश्चंस तो लाइक हमें मैम बोलती थी कि ऐसे 5 मिनट में करने के लिए करना, तो सर वो तो जल्दी ही हो गए थे एंड मैं बहुत काम वे में मैं कर रहा था। तो सेकंड सेट तो आई थिंक कि बहुत ही इजी था, फर्स्ट सेट में फिर भी कैलकुलेशंस थी, बट मैम ने हमें थोड़ी सी शॉर्ट ट्रिक्स दी थी कि ये इस तरीके से कैलकुलेट करना, तो वो सब सॉर्टेड। सो सब तुमको बहुत हेल्प किया। गॉट इट बंसल। तो बंसल ये बताओ, ठीक है अब तो ऑल इंडिया रैंक 180 आ गए, 12th तो निकल ही जाएगा, कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है। अगर एक चीज तुमको अपने कोर्स ऑफ प्रिपरेशन में चेंज करना हो, ये क्वेश्चन हम सबसे पूछ रहे हैं जस्ट टू अंडरस्टैंड कि क्या 180 रैंक वाले को भी रिग्रेट होता है कि क्या मैंने कुछ गलती कर दी, ये कोर्स ऑफ प्रिपरेशन में हो सकता है या फिर वो 2 घंटे में हो सकता है, वो एक चीज क्या तुमको है जो जिसको तुम अब चाहोगे कि इफ गिवन अ चांस अगेन आई वुड वॉन्ट टू चेंज दैट, वो कुछ ऐसा गलती जो तुमको लगता है जो तुम्हारे जूनियर्स को नहीं करना चाहिए? सो वो लाइक डेलिब्रेट मिस्टेक नहीं होती, वो लाइक थोड़ा आपने बोला था ना कि 2 मिस्टेक्स तुम कर सकते हो, सब करके आते हैं, तो वो 2 मिस्टेक्स मैंने गलत मार्क कर दिया एंड लाइक वो मुझे बहुत ही बुरा लगता है कि मतलब दैट क्वेश्चन वाज टू ऑब्वियस बेसिकली, तो वो जब क्वेश्चन गलत हुआ तो उसके लिए बुरा लगा। उसके अलावा से आई थिंक कि प्रिपरेशन से लाइक मैं चाहता था कि ऐसी हो कि चाहे कोई भी रैंक आए, सो मतलब मैं अपने आप को लास्ट में ये ना कहूँ कि यार मैंने अपना पूरा नहीं किया, तो बेसिकली दैट्स द मोस्ट परफेक्ट आंसर आई हैव हर्ड कि रिजल्ट जो होना होगा वो होगा। यस सर, यू कांट चेंज इट, वो 2 घंटा कैसे ट्रीट करेगा, बट ये रिग्रेट्स कभी नहीं होना चाहिए बंसल की मैंने अपना सब कुछ दिया नहीं एग्जाम को। एंड एक चीज जो मैं तुमसे पूछना भूल गया, मॉक एनालिसिस के बारे में व्हाट डू यू फील? सो लाइक मॉक्स तो सर मतलब सब देते हैं आई थिंक, बट मॉक एनालिसिस का जो NPLC में लाइक पैटर्न है आई डोंट थिंक सो कि वो कहीं पे भी है। सो मॉक एनालिसिस से लाइक उधर आप सर जैसे बोलते हो कि अपने दोस्तों से जब तक लड़ोगे नहीं वो आंसर दिमाग में नहीं जाएगा, आंसर की इज़ वेरी ब्लैंक सर, उसमें तुम देखोगे कि अच्छा ये आंसर है लेकिन तुम यू आर टेंड टू फॉरगेट दैट। बट अगर तुम आर्ग्यू करते हो तो सर लाइक कुछ मॉक्स अगर मतलब कुछ पैसेजेस थे वो रिपीट हो गए, तो तब मॉक देते समय याद आता था अरे ये तो हमने मॉक एनालिसिस में फाइट करी थी इसके बारे में। एंड सर लाइक बेसिकली मॉक के स्कोर्स तो शायद बढ़ जाएंगे, उसके अलावा सर जो एक ओवरऑल पर्सनैलिटी जो बढ़ती है लाइक मॉक एनालिसिस से आर्ग्यू करने से, सो वो आई थिंक कि मतलब दैट इज अ वेरी गुड थिंग अबाउट मॉक। सो मॉक एनालिसिस हेल्प्ड यू अ लॉट। सर यस बंसल, so that's great बंसल। होता है ना, I've understood, I think होता है ना तुम्हारा any advice you have for next one, अभी I'll be calling all of you to address the juniors at center next week, but any advice you have for the people who are writing it? I mean, I just want to say sir कि मतलब फॉलो सर ब्लाइंडली सर, मतलब आप सर मतलब क्योंकि ये सिलेबस जैसे आपने बोला एग्जाम का सिलेबस इज एंडलेस, इधर सब प्रेडिक्ट कर रहे कि ये आएगा ये नहीं आएगा, सो यू नो कि मतलब बेसिकली कि क्या बन जाएगा सवाल एंड क्या पॉसिबिलिटी है उसकी, तो वो सर जो गाइडेंस आप दे देते हो सो आई थिंक कि सर दैट इज अनमैच्ड सर, तो आपको लाइक फॉलो करे बस। थैंक यू बंसल, बट द क्वेश्चन आई आस्क्ड वाज not for this right, मतलब मैं जनरली पूछना था कि 2027 में लोगों का मतलब कि कोई एडवाइस है तुमको ये बताओ, बट that's great बंसल। So I think I've seen you working hard
I have seen you evolving. I have seen you evolving as a student, as a person, as a friend, right? तुम लोग का पूरा बैच ही बहुत अच्छा किया. आई थिंक अगेन अगर जो भी हमारा इंटरव्यू लगातार देख रहा है, सो पॉसिबली यू वुड हैव सीन दैट आई कीप मेंशनिंग कि एक ग्रुप था, देयर वाज अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, ये अपने एक दूसरे को हेल्प करते थे. बंसल वाज वन ऑफ देम. सो बंसल, इफ यू कैन जस्ट ब्रीफली टेल अबाउट देम. सो 6 दिसंबर को हमने लाइक 3 to 4 फैक्ट्स डिस्कस करे एंड बेसिकली सेम फैक्ट्स एग्जाम में आए हैं. एंड वो कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे कि वो मोस्ट ऑब्वियस नहीं थे, बहुत लोग उसमें फंसे थे. एंड वो क्वेश्चंस जब हम मतलब पेपर दे भी रहा था तो मुझे याद है, अरे ये तो हम कल ही डिस्कस कर रहे थे. तो बेसिकली जब हम लोग लाइक कोई क्वेश्चन है जिसका एम्बिगस आंसर है, लाइक डॉकिंग किस कंट्री ने पहले करा, वो मैंड अनमैंड यूएसएसआर, उसमें डिफरेंस आ जाता है. तो वो क्लैरिटी हम पूछ लेते थे उस ग्रुप में, जो व्हाट्सएप ग्रुप था हमारे दोस्तों का. सो तो उसमें बेसिकली उन लोगों ने क्लियर कर दिया कि अच्छा ये आंसर है, ये नहीं है. एंड वो सेम क्वेश्चन से आ भी गया. उसमें आई थिंक कि सबकी ही हेल्प हो गई. नहीं, दिस मोड ऑलवेज हेल्प्स. हम लोग बताते हैं मतलब बहुत बार जैसे टारगेट पे कुछ है और तुम लोग पढ़ रहे हो, मेरे पास मुझे पता होता था क्या क्या क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ. And when I just used to hear what exactly are you guys asking from each other, मुझे लगता था कि ये सारे वही तो पूछ रहे हैं जो पेपर में है. So this mode always helps. इस तरह का जो प्रिपरेशन होता है, इस तरह का जो पेपर होता है जिसका सिलेबस बहुत ज़्यादा डिफाइन नहीं होता है, उसमें इस तरह का इफ़ यू कैन इम्बाइब अ कल्चर लाइक दिस, इट ऑलवेज हेल्प्स. ग्रेट. मुझे याद है सर, आप लाइक टेस्ट से पहले आप हमें थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम देते थे. हम लोग फर्स्ट रो में हम लोग आर्ग्यू कर रहे थे इसका क्या हुआ, इसका क्या हुआ. एकदम से आपने बोला पेपर ले लो कि इन लोगों ने वो क्वेश्चन बोल दिया जो है एग्जाम में. तो ये हमेशा होता था. इसलिए मुझे लगता है कि ये वाला जो कल्चर होता है पूरा तुम्हारा पढ़ने का, ये सिस्टम बड़ा अच्छा है. एंड दिस इज व्हाट. सो हम सब पूरा टाइम उधर पढ़ रहे, मतलब बाहर पढ़ रहे हैं, ऊपर पढ़ रहे हैं, इतना शोर मचा रहे हैं. हम लाइक गेट बंद कर देते थे, ये बहुत शोर मचा रहे, पढ़ने नहीं दे रहे हैं. अशनूर भी यही बोल रहा था कि सर मैं आधी चीजें तो सेंटर के बाहर में खड़ा होकर. हाँ. सो मतलब एंड एवरीबडी अराउंड, मतलब मुझे तो बहुत सारा रिव्यूज मिलता रहता है, जो इस बिल्डिंग के बगल वाले हैं, ऊपर वाले, सब बोलते हैं कि यार आपके यहाँ के बच्चे बड़े सिंसियर हैं. ये सब बाहर खड़े होकर पढ़ रहे होते हैं, कोई गाड़ी के बगल में, कोई टायर के नीचे बैठ के, कोई वहां पर. तो शोर भी बहुत मचाते हैं. बट आई थिंक नाउ दे ऑल यूज्ड टू इट बिकॉज तुम लोग जो कर रहे हो अच्छे के लिए कर रहे हो. सो दैट्स ग्रेट. बंसल होता है ना, इट वाज सो गुड टू हैव यू सिटिंग दिस वे, राइट. ये इस दिन का हम लोग सब इंतजार किए थे कि इफ इट गोज वेल देन विल ऑल सिट, विल टॉक, so that the next generation and the next set of people who will be writing GLAD, they get benefited. So मैंने कभी मतलब जब मैं आया था इधर, मतलब it is a privilege sir. मतलब मैं बस चाहता था कि इधर आ जाऊँ. मेरे को कभी लगा नहीं था कि मैं आ पाऊंगा इधर. नहीं होता है. इट वाज ए हार्ड वर्क. मेहनत करोगे तो होना ही है. एंड तुम लोग सब कोई उसके एकदम परफेक्ट एग्जाम्पल हो. सो ग्रेट. दिस वाज यथार्थ बंसल, ऑल इंडिया रैंक 180. Right, so a very hard-working student. So Bansal, now we'll be meeting again. So we are planning get-togethers, and सबसे पहले तो juniors को address करने के लिए तुम लोग को भी हम बुलाएंगे, right? So we'll meet again, Bansal. Thank you for making us all proud.